In last class, we have discussed about linkage and crossing over, recombination process, and in that particular class, we have shot out why in case of animals or in Drosophila, we have found that the parent generation is much more higher in some cases, and in some cases, the recombinant is higher. It is solely depend on the distance of the gene present in a chromosome. After that, the next important concept about the genetics is sex determination. Before genetics or the discovery of genes on chromosome, it is a very important question in the mind how the sex is determined in case of the reproduction process. How it can be possible? How it is possible that sometime male child will develop and sometime female child will be developed? So this is a very crucial question which is coming in front of the scientists. After genetics, sex determination, the work has been once it is consigned with only the plant, there is no problem of male and female. But once it comes with the animal, here there are two different traits or different pattern. One is male and another is female. So in case of sex determination, the earlier work is carried out by many scientists to find out what is the factor, what is the region which make a child male or which make a child female. Because at that time we are not able to find out this. So earlier so many works are carried out on insects, and during the same period that Henke in 1891 he is observing a spermatogenesis process. In insect, and during his observation, what he found? He found that the sperm produced by insect are of two types. Whatever the sperm produced by the insect are of two types. One sperm having a structure known as, at that time, Henke consider it as X body. As in maths, we always given a statement, find the value of X, because we are unknown. So he has given that this sperm carrying a structure and given the name X body. But the another type of sperm doesn't have such a structure or any body. So what does it mean? Only the finding of Henke is that during the process of spermatogenesis in insect, there are two different type of sperms are produced. One is sperm carrying X body, but the another type of sperm doesn't carry such type of body. And because the two different type of sperm are produced, it may be possible that they will decide the process of the formation of male or female. But he is unable to express or explain all about this. So he has given that. After the discovery of nucleus and chromosome and genes, we have now understood that this X body are actually X chromosome, which define whether the child will be male और चाइल्ड विल बी फीमेल. सो यहां पर एक्स बॉडी, इसी एक्स बॉडी को बाद में क्या नाम दिया गया? एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि अब हमको पता है कि ये एक्स क्रोमोसोम. एंड दोज हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, these chromosomes are known as sex chromosome. Sex determination, these chromosomes are known as sex chromosome. And those who are, because there are no only these one or two chromosomes which are present in any organism, there are some other chromosomes also
which are responsible for the formation of the formation and growth and development process. Those other chromosomes are known as autosomes, which are not directly involved in the process of sex determination. So Hankins is the first scientist in 1891 who have given the idea about X body, and after that these X body are considered as X chromosome. तो ये जो X क्रोमोसोम था, बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो इंसेक्ट में जो अलग तरीके का क्रोमोसोम आ रहा है कुछ और नहीं है, एक्स बॉडी नहीं है, एक्चुअली में क्रोमोसोम, और बाद में इसीलिए हमने इसको एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब इसके बाद एक्चुअली में 3 तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन है, या यूं कहिए कि 3 तरीके का प्रोजेनी फॉर्मेशन होगा, या 3 तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि जो टाइप है वो इस तरीके का है, एक्सोटाइप, XY टाइप, और एक आएगा ZW टाइप। समझ में आ जाएगा? एक्सोटाइप और XY टाइप ये आपको देखने को मिलेगा मेल के केस में, ये देखने को मिलेगा आपको फीमेल के केस में। आपको लग रहा होगा कुछ अलग तरीके की चीजें, थोड़ी देर बाद आपको क्लियर होगा सब। एक्सोटाइप, दरअसल हमको ये बहुत अच्छे से पता है, आज जितने भी लोग हैं उनको पता है कि जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके का होगा। मैं यहाँ केवल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहा हूं, इसलिए यहाँ पर मैं जो ये क्रोमोसोम बना रहा हूं ये केवल और केवल रिलेटेड है किससे? सेक्स क्रोमोसोम से, या जो दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि ये वो क्रोमोसोम है जो किसी ऑर्गेनिज्म में सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं, आइदर मेल और फीमेल। तो आप मेल में यदि देखेंगे तो आपको 2 तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन वैरायटी देखने को मिलेगी। एक मिलेगी जिसमें मेल के पास क्या होगा? XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, दूसरी होगी XY टाइप। यानी यदि इनकी आप फीमेल देखें तो फीमेल में आपको क्या मिलेगा? XX। इनकी भी फीमेल देखें तो यहां पे भी आपको क्या मिलेगा? XX। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बस ऑटोसोम को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, जब हम ह्यूमन बीइंग में आएंगे तब बात करेंगे। तो ये केवल सेक्स क्रोमोसोम की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर भी सेक्स क्रोमोसोम कैसे हैं? XX XX मींस यहां पर जो भी गैमेट बनेंगे, जब भी यहां गैमेट बने, सॉरी जब भी गैमेट बनेगा वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। मतलब इनका जो ओवम बनेगा उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होगा, इनके भी ओवम में क्या होगा? एक एक्स क्रोमोसोम होगा। लेकिन जो एक्सो टाइप ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी है, यहां पर जब आप देखेंगे तो स्पर्म 2 तरीके के बनेंगे। एक स्पर्म में एक्स मौजूद होगा, एक स्पर्म में कुछ भी मौजूद नहीं। ओ मीन्स 0, एक्सो मीन्स 0। तो एक में एक्स मौजूद होगा, एक में कुछ भी मौजूद नहीं होगा। ये कंडीशन आई है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट ये होगा एक्चुअली में कि जब एक एक्सओ टाइप के साथ, एक्सओ टाइप के मेल हो गया, यहां पर मान लीजिए एक फीमेल, हमने कहा कि इनकी सबकी फीमेल कैसी है? इसी तरीके की। तो इनके जो गैमेट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? एक ही तरीके के गैमेट बनेगा जिसमें क्या मौजूद हो? एक्स मौजूद हो। अब इनके जो ओवम बन रहे हैं वो सब एक तरीके के हैं, लेकिन जो स्पर्म बन रहे हैं वो सब क्या है? अलग अलग तरीके के। इस सिचुएशन में यदि ये वाला स्पर्म इस वाले ओवम के साथ फ्यूज होता है, यानी कौन सा स्पर्म? जिसने एक्स कैरी किया हुआ है, तो ये क्या बनेगा? XX। और जब ये XX मिल जाएंगी तो ये क्या बन जाएगा? फीमेल। जबकि यदि ये दूसरा वाला स्पर्म जो O वाला, निल वाला है, जिसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, ये जब इस X के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा क्या? XO टाइप। और जब ये बनेगा तब ये क्या बन जाएगा? मेल। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें मेल में एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। एक्सओ का मतलब होता है एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा क्रोमोसोम होता ही नहीं, 0 होता है, नल होता है। तो जब भी स्पर्म केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम लेकर 2 तरीके के स्पर्म बनेंगे, स्वाभाविक सेग्रीगेशन होगा। तो एक में एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा, एक में कुछ नहीं जाएगा। तो ये जो एक्स क्रोमोसोम वाला जब किसी ओवम के साथ फर्टिलाइज होगा, फ्यूज होगा, तो वो फीमेल का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो O वाला है जब किसी के साथ फर्टिलाइज होगा तो वो इस मेल का फॉर्मेशन होगा।
सबसे बेस्ट एग्जांपल यदि आप ऐसा मान लें कि XO टाइप किसमें देखने को मिलेगा, तो आपको ग्रास ऊपर में ये एग्जांपल देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा ये? ग्रास। हनी बी में भी आप कुछ इसी तरीके का कॉम्बिनेशन देखते हैं, वो भी एक तरीके का इंसेक्ट है। हनी बी में भी ऐसे ग्रास ऊपर में आपको एग्जांपल देखने को। जहां तक रही बात मेल हेट्रोगेमिटी की XY टाइप की, अभी फिलहाल मैं ये फीमेल वाला थोड़ा सा हटा देता हूं यहां। अब बात कर लीजिए इस वाले टाइप की, इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये वाला जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसमें मेल के पास क्या मौजूद है? XY। फीमेल के पास क्या मौजूद है? XX। अब ऑटोमेटिकली यहां पर मेल दो तरीके के स्पर्म बनाएगा, एक X और दूसरा Y। यहां पर जो ओवम बनेगा वो क्या बनेगा? दोनों XX ही बनेगा। आप चाहे तो ऐसी क्रॉस कर लीजिए, या जैसे अभी तक आप चेकर बोर्ड बनाकर क्रॉस करते हैं वैसा बना लीजिए। एक के आप गैमेट इधर रख दीजिए, एक के गैमेट आप इधर रख दीजिए। आपको दो फीमेल देखने को मिलेंगी और दो क्या देखने को मिलेंगे? मेल देखने को मिलेंगे। तो जहां XY टाइप होगा, हेट्रोगैमस हो गया, वहां मेल बन जाएगा। जहां XX रहेगा वहां फीमेल बन जाएगा। तो ये मेल हेट्रोगैमेटी होती है। मींस जो होमोगैमेट बनते हैं, होमोजाइगस गैमेट बनते हैं, वो मेल फीमेल में बनते हैं, और जो हेट्रोजाइगस गैमेट बनते हैं वो मेल में बनते हैं। तो इसको XO टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन और इसको XY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है। XY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन में, और अभी मॉर्गन साहब जिस पे काम कर रहे थे, ड्रोसोफिला मेलंगिस्टर, इन दोनों में देखने को मिलता है। यहां यह भी समझना बहुत जरूरी है कि जैसे यहां पर XO टाइप में एक तो X क्रोमोसोम हो गया, दूसरा तो क्रोमोसोम नहीं होता। यहां XY टाइप जब मेल हेट्रोगेमिटी जिनमें देखने को मिलती है, वहां पर X तो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो Y होता है वो नॉर्मल क्रोमोसोम नहीं होता, बट वो साइज में Y साइज कैसा होता है? थोड़ा सा छोटा होता है, और उसको हम कहते हैं Y क्रोमोसोम। तो चाहे वो आप ह्यूमन की बात करते हैं, ड्रोसोफिला मेलंगिस्टर की बात करें, तो इस तरीके के इनके फिनोटाइप में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, और बाकी ऑटोसोम होंगे। तो आई थिंक ये बात क्लियर होगी। तो दो तरीके की हमने मेल हेट्रोगेमिटी देखी, XO टाइप और XY टाइप। एक तीसरे तरीके की मेल हेट्रोगेमिटी है, वो है ZW टाइप। यहां यह समझ लीजिए, वहां हम देख रहे थे XO टाइप में और XY टाइप में, ये दोनों किसके एग्जांपल हैं? ये मेल हेट्रोगेमिटी के एग्जांपल। मींस इन दो टाइप के ऑर्गेनिज्म में फीमेल के साथ सेम टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे, मेल के साथ डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे। लेकिन फीमेल हेट्रोगेमिटी भी देखने को मिलती है, जहां पर मेल के गैमेट सिमिलर बनते हैं, लेकिन फीमेल के गैमेट कैसे बनते हैं? डिफर बनते हैं। और ये देखने को मिलता है हमें किसमें? खासकर बर्ड्स में जो गैमेट बनते हैं फीमेल में, वो बनते हैं इस तरीके से, Z और W। X और Y की जगह Z और W इसलिए लिया है ताकि हम ये इंडिकेट कर सके कि X और Y जो हेट्रोगेमिटी है वो मेल को इंडिकेट करने के लिए है, और Z और W जो है तो किसको इंडिकेट करने के लिए? फीमेल को इंडिकेट करने के लिए। क्योंकि यदि यहां भी मैं X और Y ही ले लूं हेट्रोगेमिटी एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि बर्ड में मेल हेट्रोगेमिटी हम शो कर रहे हैं या फीमेल हेट्रोगेमिटी शो कर रहे हैं। सो फीमेल हेट्रोगेमिटी शो करने के लिए हमने यहां पर Z और W लिया है क्रोमोसोम का नाम। जबकि जो मेल मेंबर होगा बर्ड में, उसके पास दो Z क्रोमोसोम होंगे और उनसे सिमिलर टाइप के स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। यानी जो दोनों स्पर्म बनेंगे वो दोनों क्या कैरी करेंगे? Z। जबकि फीमेल क्या करेगी? एक Z और एक W। ऑटोमेटिकली इन दोनों का क्रॉस होगा, और जब कभी भी क्रॉस में Z सामने आएंगे वो क्या बनाएंगे? मेल। और जब कभी भी ZW आएंगे वो क्या बनाएंगे? फीमेल। तो इस तरीके से तीन टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन हमको देखने को मिलता है, XO टाइप, XY टाइप, ZW टाइप।
और ये तीनों सेक्स डिटर्मिनेशन का काम ये होता है कि इनमें से अब ये देखना पड़ेगा, जैसे एक्सो टाइप है तो ये मेल हेटेरोगैमेटी है, और एक्स वाई है तो मेल हेटेरोगैमेटी है, जेड डब्ल्यू टाइप ये फीमेल हेटेरोगैमेटी है। इट मींस कि बर्ड के केस में फीमेल गैमेट जो बनाती हैं वो डिसिमिलर गैमेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, जबकि जो ह्यूमन बीइंग या ड्रोसोफिला मेनिस्टर या जो है ग्रॉसहॉपर, वहां जब जो मेल गैमेट बनाते हैं वो हेटेरोगैमेट होते हैं, वो सिमिलर नहीं होते। वहां पर फीमेल सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट बनाती है, मेल डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बनाते हैं। बर्ड के केसेस में फीमेल डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बनाती हैं, मेल जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है। इज देयर एनी डाउट? क्लियर हुआ? नाउ अब बात करते हैं कि हमने जैसे पहले बता दिया कि एक्स वाई टाइप ह्यूमन में होता है, एक्स जीरो या एक्सओ टाइप जो है तो वो ग्रासहॉपर में होगा, जेड डब्ल्यू फीमेल बर्ड हेटेरोगैमेटी। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन कैसे होता है? मैंने पहले ही कहा था कि वो जो मैं बात कर रहा हूं वो केवल सेक्स क्रोमोसोम को लेकर कर रहा हूं, ऑटोसोम को अपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं आता। अब यहां ह्यूमन के बारे में बात करेंगे कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। सो आपको पता है ह्यूमन में भी दो कैटेगरी है, दो डिवीजन है, मेल और फीमेल। स्वाभाविक है इन्हीं के फ्यूजन से किसका फॉर्मेशन हो, चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा, तो हमको इन्हीं के थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन बताना हो। सो मेल एक तरीके की गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, फीमेल एक तरीके की गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। हमको पता है मेल हमारे बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 46। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो 23 पेयर। मैं दोनों चीजें एक साथ बताता चलूंगा। 46 का मतलब यह है कि 44 हमारे बॉडी में क्या है, ऑटोसोम, प्लस 2 क्या है हमारे पास, सेक्स क्रोमोसोम। एम आई राइट? तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 44 ऑटोसोम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम है। वो 2 सेक्स क्रोमोसोम कौन से, मेल है चूंकि, तो वो सेक्स क्रोमोसोम क्या होंगे, एक्स और वाई। 44 ऑटोसोम और एक पेयर क्या हो गया, सेक्स क्रोमोसोम। 44, 45, 46। इज इट क्लियर? आप पेयर में यदि मैं बात करूं तो 22 पेयर हमारे पास क्या है, ऑटोसोम, प्लस 1 पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। इज देयर एनी डाउट? इसी को मैंने यहां पर इस तरीके से लिखा है, 22 ऑटोसोमल पेयर। अब मैंने डबल ए इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये पेयर में है, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम। यहां मैंने 44 ऑटोसोम केवल लिखा है, और प्लस एक पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। वो पेयर कौन सा है, एक्स एंड वाई। ये एक पेयर हो गया, तो 22 प्लस 1 23। ये कितने हो गए फिर से, 23। यहां तक कोई डाउट? हमारे सबके हर के शरीर में जो भी ह्यूमन बीइंग है, हर एक सेल में यही कंपोजिशन है। मेल यदि है तो 46 क्रोमोसोम होंगे, या तो आप उन्हें 23 पेयर कह लीजिए। 46 का मतलब 44 ऑटोसोम है उसमें, और 2 कैसे हैं, सेक्स क्रोमोसोम। यदि मेल है तो 44 ऑटोसोम, और जो सेक्स पेयर ऑफ एक्स होगा, इसमें क्या होगा, वाई होगा। क्लियर हो रही मेरी बात? अब इस के बाद यदि मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल में भी ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट चलेगा। ऐसा मानकर चलिए आपकी 44 सेम यही 44 ऑटोसोम प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम। यदि मैं पेयर की बात करूं तो 22 पेयर ऑटोसोम प्लस 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। फिर यदि मैं चाहूं तो इनको और 44 ऑटोसोम प्लस XX सेक्स क्रोमोसोम यहां पे ले लूं, तो इनको मैं कहूंगा 22 ऑटोसोमल पेयर प्लस एक पेयर क्या हो गया,
सेक्स क्रोमोसोम का। सो आई थिंक आई हैव क्लियर ईच एंड एवरीवन कि हमारे शरीर के हर एक सेल में यदि वो फीमेल है तो 44 ऑटोजोम और 2 क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम। क्या उसको आप लिख सकते हैं 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम और एक पेयर क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम। एक ही बात है मैथमेटिकली, यहाँ हमने पेयर में वर्ड यूज किया, यहाँ पर हम सिंपल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो 44 हो जाए। आई थिंक सभी को समझ में आ गया। यानी आपके हाथ के भी सेल में, आंख के सेल में, कान में, सिर में, पेट में और गोनेडियल सेल में, सब में इसी तरीके के क्रोमोसोमल सेटिंग है। अब आगे बात करें। ये जो मेल है, अब इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, मान लो 46 क्रोमोसोम है, यहां भी 46 क्रोमोसोम है। गैमेट फॉर्मेशन यदि आपको करना है, कौन सा डिवीजन चलेगा, मियोसिस। और हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि जब गैमेट बनेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, क्या होगा 22 ऑटोसोमल पेयर। आप इसको ऐसा समझ लीजिए, चलिए मैं बता भी देता हूं गैमेट बनने के पहले। 22 ऑटोसोमल पेयर प्लस एक्स वाई था, और ये 22 ऑटोसोमल एक्स वाई पेयर कन्वर्ट होगा 22 ऑटोसोम प्लस एक्स और 22 ऑटोसोम प्लस 5। एम आई राइट? इसी तरीके से अलग होगा, तो 22 ऑटोसोम प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम मिलकर कितना हुआ, 23 हो गया। इसी तरीके से यहाँ 22 ऑटोसोम एक वाई मिलकर कितना हो गया, 23। हमने शुरुआत कितने से क्रोमोसोम से की थी, 46 क्रोमोसोम से की थी। यहाँ पर क्रोमोसोम संख्या कितनी हो गई, 23 हो गई। यहाँ पर भी ठीक वही प्रोसेस चलेगी, यहाँ पर भी मियोसिस होगा, यहाँ पर भी 22 ऑटोसोमल पेयर है प्लस एक्स और एक्स है। इनमें भी जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो 22 ऑटोसोम प्लस एक्स और 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, क्योंकि यहां पर सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम है, इसलिए दोनों के दोनों गैमेट एक जैसे बने। अब यदि यहां पे भी देखिए 22 ऑटोसोम प्लस एक मिलकर कितना हुआ, 23। 22 ऑटोसोम एक मिलकर कितना हुआ, 23। अब इनको आप सिंपली क्रॉस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। मैं फिर से बनाता हूं, मैं चकरबोर्डी बना के दिखा देता हूं। ये देखिए 22 ऑटोसोम प्लस एक्स एक साइड, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, ये फीमेल के दोनों होंगे गैमेट। इधर लिख देता हूं 22 ऑटोसोम प्लस एक्स और 22 ऑटोसोम प्लस वाई, ये फीमेल के गैमेट हो। अब हम क्रॉस करते हैं, ये देखिए 22 ऑटोसोम मिलके कितना हो गए, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम, एक एक्स ये एक एक्स, 22 पेयर प्लस 1 पेयर इज इक्वल टू 23 पेयर। यही था 46 क्रोमोसोम मींस 23 पेयर। सेम दोनों एक जैसे, तो यहां पे भी वही बनेगा 22 ऑटोसोमल पेयर प्लस एक्स एक्स। नीचे की तरफ आ जाइए, ये 22 ऑटोसोम, ये भी 22 ऑटोसोम, तो 22 मिलके क्या होगा 22 ऑटोसोमल पेयर प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम ये, एक सेक्स क्रोमोसोम ये। बस ये है कि यहाँ पर ये एक्स वाई है, इसी तरीके से इसमें भी क्या आएगा 22 ऑटोसोमल पेयर प्लस एक्स और वाई। मीन्स कहने का ये कि जहां कहीं भी एक्स और वाई साथ में आ जाएंगे वो मेल हो जाएगा, और जहां तक एक्स एक्स रहेंगे वो क्या रहेगा, फीमेल। होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन में मेल और फीमेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बात। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है आपके बुक में, म्यूटेशन। देखिए म्यूटेशन के बारे में हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास आएगी तब बात करेंगे, जब हम डीएनए के बारे में जान चुके होंगे तब थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, बस जस्ट क्योंकि टॉपिक है तुम्हारे बुक में इस चैप्टर में, तो बात कर लूं। ह्यूगो de Vries वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने म्यूटेशन टर्म को कॉइन किया था, और साथ ही साथ दूसरी चीज ये थी, उन्होंने कहा था कि अल्टरेशन इन क्रोमोसोम और सडन चेंज इन जेनेटिक सीक्वेंस,
यही उनकी डेफिनेशन है कि जब कभी भी क्रोमोसोम में के कॉम्पोजिशन में कोई चेंज आए, सडन चेंज हो, कुछ अल्टरेशन हो जाए, कोई चीज जुड़ जाए, कोई चीज घट जाए और उसके कारण जो चेंजेस फिजिकली देखने को मिले, वही कहलाते हैं क्या, म्यूटेशन। और म्यूटेशन तब आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप डीएनए का पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में है। साथ ही साथ पॉइंट म्यूटेशन वर्ड भी उन्होंने यूज किया। पॉइंट म्यूटेशन में यह था कि जब किसी क्रोमोसोम के किसी एक पॉइंट में कोई नाइट्रोजनस बेस के घट जाने से, निकल जाने से जब कोई चेंज देखने को मिलता है तो उसको उन्होंने पॉइंट म्यूटेशन कहा था। म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया में इसी तरीके का पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ह्यूगो डिवरीज साहब ने कहा कि जो म्यूटाजेंस हैं उनके कारण म्यूटेशन जनरेट हो सकता है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो सकती हैं, कुछ और भी केमिकल्स होते सकते हैं जिनके कारण हमको ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में हम फिलहाल बात नहीं करेंगे। हम इतना जान लें कि जब कभी भी क्रोमोसोम में या जीन्स के सीक्वेंस में चेंज होता है तो स्वाभाविक है फिजियोलॉजी भी बदल जाएगी, उनका बिहेवियर बदल जाएगा और उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। जो चेंज होता है इसी को म्यूटेशन कहते हैं। तो ये हम बात करेंगे थोड़ा सा और जब हम अच्छे से पढ़ चुके होंगे डीएनए के बारे में, तो इसमें हम अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करते। हम आने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है जेनेटिक डिसऑर्डर। देखिए जब मैं जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रहा हूं, नाम से ही क्लियर, डिसऑर्डर किसमें, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या है, जेनेटिक्स दरअसल क्रोमोसोमल लेवल पे, जीन लेवल पे जब कोई डिसऑर्डर हो वो कहलाएंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। और यदि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है आपके बॉडी में, इट मींस कि वो क्या होगा, इनहेरिट होगा नेक्स्ट जनरेशन। क्यों, क्योंकि आप जो भी नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है उसके पास जो भी कैरेक्टर अवेलेबल है वो कहां से मिले, वो आपके ही जीन्स के थ्रू उसके पास तक पहुंचे, उन्हीं से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि कोई डिसऑर्डर पेरेंट के जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स में होंगे, ऑटोमेटिकली वही डिसऑर्डर जो है तो कहां जाएंगे, प्रोजेनी में भी देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ना बहुत जरूरी है। आपके बुक में जेनेटिक डिसऑर्डर्स की यदि मैं बात करूं तो तीन जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉन्सेप्ट को तीन चीजों में डिवाइड किया है। एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर की यदि मैं बात करूं तो ये आएगा आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर, और दूसरा उन्होंने डिवीजन कर रखा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये दो डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या अंतर है। देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर एक्चुअली में जो मेंडल साहब ने जो कॉन्सेप्ट दिया था ट्रेट का या जीन का, उनके अल्टरेशन से, उनके एडिशन और डिलीशन से जब किसी तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर डेवलप हो तब उसे हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। यहां पर क्रोमोसोमल नंबर में कोई चेंज नहीं आता, जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो होता है जहां पर मियोसिस प्रोसेस के दौरान जब कभी सेग्रीगेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ह्यूमन के केस में बताया था कि 46 क्रोमोसोम में 22 ऑटोसोम एक तरफ एक स्पर्म में चले जाएंगे, 22 ऑटोसोम एक स्पर्म में चले जाएंगे। जो सेक्स क्रोमोसोम है वो 22 के एक साथ एक चला जाएगा, 22 के साथ एक चला जाएगा। जब कभी सेग्रीगेशन की प्रोसेस में वो सेग्रीगेट सही से नहीं हो पाते क्रोमोसोम, और कई बार एक साइड में कुछ ज्यादा क्रोमोसोम चले जाते हैं, एक तरफ कुछ कम क्रोमोसोम चले जाते हैं, तो उन क्रोमोसोमन की एन्यूपोलाइडी से, या तो उनके ज्यादा हो जाने से या यूपोलाइडी के कम हो जाने से, किसी भी कंडीशन से जब कोई डिसऑर्डर जनरेट होते हैं तो उन्हें कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। फिलहाल मेंडेलियन डिसऑर्डर की यदि मैं बात करूं, एग्जांपल लूं तो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, देन और एग्जांपल हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोनुरिया, ये सब एग्जांपल क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। जब मैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करूंगा तब डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिटर सिंड्रोम, ये सिंड्रोम हम उसमें ध्यान।
ये तो मैंने जस्ट कुछ बातें कही कि यदि हम जेनेटिक डिसऑर्डर देखेंगे तो हमको दो देखने को मिलेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो ट्रेट की बात थी, जो जीन की बात थी, उनमें जब कोई चेंज आता है, यानी कोई पूरे क्रोमोसोम में नहीं बल्कि कोई एक छोटे से पार्ट में कोई चेंज आता है जिसके कारण बिहेवियर चेंज हो जाता है, फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है उस क्रोमोसोम की, तब वो कहलाता है क्या? मेंडेलियन डिसऑर्डर। एग्जांपल के तौर पर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा कि यदि हीमोग्लोबिन के 6 वाले पोजीशन पे ग्लूटामिन की जगह वेलिन आ जाता है केवल एक सी और यू के चेंज होने से, तो जो नॉर्मल डिस्क्राइब शेप जो या बाइकन्वेक्स जो आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है वो सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। एक सिंगल जीन में कन्वर्ट होने के कारण ये मेंडेलियन डिसऑर्डर जनरेट होता है। जबकि जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए, एक सिंगल क्रोमोसोम, मान लीजिए ह्यूमन में 23 जाने चाहिए और फिर वो स्पर्म का 23, ओवम का 23 मिलकर 46 बन जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए कि सेग्रीगेशन के दौरान किसी स्पर्म में 23 ना जाके एक में 22 चले जाते हैं, एक में 24 चले जाते हैं, और ये 24 वाला किसी 23 फीमेल ओवम के साथ फ्यूज होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे 46 की जगह। तो इस तरीके के जो डिसऑर्डर होते हैं वो कहलाते हैं क्या? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। फिर हम बात करेंगे आरआई डिजीज के बारे में, चाहे सिकल सेल हो, थैलेसीमिया हो, हीमोफीलिया हो, फिनाइलकेटोनुरिया हो या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो। अब बात ये आती है कि यदि जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहे हैं तो इनको कैसे ट्रेस किया जाए, इनको कैसे पता किया जाए? इनको पता करने के लिए हम फिर सहारा लेते हैं एक टेक्निक का जिसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो पहले उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, बाद में फिर इनके बारे में आएंगे और इनके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक। दरअसल जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, और यदि हम इनको पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर, पूरी तरीके से समझना चाहते हैं, तो यदि हम ये सोचें कि जब ये ट्रांसफर होंगे तब हम करेंगे तो बड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि यदि मेरे पास है मेरे बच्चे में जाएगा कि नहीं जाएगा, या उससे आगे जाएगा या नहीं जाएगा, ये देखने के लिए हमको उतनी लंबी जनरेशन चाहिए। ऑटोमेटिकली यदि मैं रिसर्च कर रहा हूं तो मेरी उम्र यदि 60 साल है, 70 साल है, तो 60 साल 70 साल के बाद ज्यादा ज्यादा मैं अपने पिताजी को और अपने बेटे को, बस दो ही जनरेशन को देख पाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में कुछ डेटा हम कलेक्ट करते हैं, हिस्टोरिकल, या यूं कहिए कि हमारी जो चेन है या हमारी जो पेडिग्री है उसको हम जो है तो ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं? देखिए, जितनी भी जनरेशन हम देख रहे हैं या हम ये समझ रहे हैं कि मान लीजिए कोई पेडिग्री एनालिसिस का फायदा क्या होगा या उसका तरीका क्या होगा, जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है जो किसी पर्टिकुलर जीन के अल्टरनेशन के कारण हुए, वो सभी के सभी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को हम पेडिग्री से पढ़ सकते हैं, या यूं कहिए उनका हम क्या कर सकते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। इसका फायदा क्या? एक तो ये है कि चूंकि हमको पहले की जनरेशन के बारे में पता होगा, तो यदि हमको पहले जनरेशन के बारे में पता है कि हमारे दादाजी के पास ये पर्टिकुलर मेंडेलियन डिसऑर्डर था, वो हमारे पिताजी लोगों के पास पहुंचा है, अब वो हमारे पास कितनी चांसेस है कि वो डिसीज हमारे पास तक पहुंचेगी, और पहुंचेगी ही क्यों? क्योंकि वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो क्या कुछ तरीका है जिससे हम उस पर्टिकुलर डिसीज से अपने आप को बचा सकते हैं? तो इसलिए पेडिग्री एनालिसिस किया जाता है। पेडिग्री एनालिसिस में एक्चुअली में ओवर जनरेशन वो ट्रेट कहां कहां विजुलाइज हुआ, किस तरीके से विजुलाइज हुआ, ये एक स्टडी होती है। ये कम टाइम में किया जा सकता है। इससे जो है तो क्या नाम से हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि यदि कोई डोमिनेंट जीन है, स्वाभाविक है कि जब तक वो रिसेसिव रहेगा तब तक वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो जब भी कभी हम प्रोजेनी का फॉर्मेशन करें तो हर बार कोशिश करें कि एक रिसेसिव जीन रहे उसमें, तो क्योंकि वो डोमिनेंट यदि डिसीज है तो वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं होगी। शायद आपको थोड़ा सा समझने में तकलीफ हो रही होगी डोमिनेंट और रिसेसिव जीन की, लेकिन जब हम पेडिग्री पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। जहां तक पेडिग्री एनालिसिस की बात है तो एक तरीके का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कई जनरेशन के में जेनेटिक डिसऑर्डर किस तरीके से परकोलेट हुआ है या किस तरीके से बढ़ा है उसकी स्टडी करते हैं, और उस स्टडी के हिसाब से बताते हैं कि इसमें जो जीन है वो सेक्स लिंक है, रिसेसिव है, ऑटोसोमल है, किस तरीके के, उनके बारे में बात करते हैं। जहां तक पेडिग्री एनालिसिस की बात है तो चूंकि यदि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है
तो कैसे बताया जाए, कैसे समझाया जाए, तो उसके लिए हमने कुछ सिंबल्स डिसाइड कर रखे हैं पेडिग्री एनालिसिस में। पहले हम सिंबल्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बाद में इस पे भी बात करेंगे। पेडिग्री एनालिसिस यदि आप देखें तो पेडिग्री एनालिसिस में जो बॉक्स होता है वो किसी मेल को इंडिकेट करता है और जो सर्कल होता है वो किसी फीमेल को इंडिकेट करता है। और ये मेल और ये फीमेल नॉर्मल मतलब डिजीज लेस कंडीशन है। बट यदि इसी बॉक्स को मैं इस तरीके से डार्कन कर दूं, इसका मतलब हो जाएगा कि ये इन्फेक्टेड मेल। इन्फेक्टेड मेल मींस इसमें वो पर्टिकुलर डिसीज दिखाई दे रही है। यदि इसी तरीके से मैं इस सर्कल को डार्कन कर दूं या शेडेड कर दूं तो ये इन्फेक्टेड फीमेल हो जाएगा। इज इट क्लियर? दूसरा, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन जहां एक मेल और एक फीमेल को इस तरीके से एक लाइन के थ्रू अटैच किया जाता है, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में क्या है, क्रॉस। इज इट क्लियर? लेकिन जब यही एक लाइन एक की जगह दो लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, इसका मतलब है क्रॉस तो यहां भी हो रहा है लेकिन नियर रिलेटिव के साथ। किसके साथ? नियर रिलेटिव के साथ। तो ये इंडिकेशन, जब आप चार्ट बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो आपके पास पता होना चाहिए किससे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक जानना बहुत जरूरी है। फिर एक इस तरीके का बॉक्स आए, ये बॉक्स यदि खाली है तो इसमें अननोन सेल्स मीन्स हमने यदि इस तरीके का बॉक्स बनाया था तो उसको मेल कहा, राउंड किया तो फीमेल। यदि मैं इस तरीके का बॉक्स बनाता हूं मतलब मुझे ये आइडिया नहीं है कि वेदर द प्रोजेनी इज मेल और फीमेल। और यदि इसी बॉक्स के अंदर मैं कोई नंबर लिख लूं तो इसका मतलब होगा कि जो प्रोजेनी है उनकी काउंटिंग कितनी है, 3। अब वो तीनों की तीनों मेल है, तीनों की तीनों फीमेल है, एक मेल है, दो फीमेल है, दो मेल है, एक, वो मुझे आइडिया नहीं। बट 3 का मतलब है 3 प्रोजेनी का फॉर्मेशन होगा। ये एक आइडिया हो जाएगा। हाँ, फिर यदि इस तरीके से बनाओ और इस तरीके से बनाओ तो ये दोनों पेरेंट कहलाएंगे और यहां जो भी आप स्ट्रक्चर बना दें, मेल बना दें, फीमेल बना दें, वो दोनों के क्या कहलाएंगे, प्रोजेनी कहलाएंगे। हाँ, अब यदि इनको आप डार्कन कर दें तो वो इन्फेक्टेड प्रोजेनी हो जाएंगे, डार्कन नहीं करेंगे तो वो नॉन इन्फेक्टेड प्रोजेनी कहलाएंगे। देखिए, पेडिग्री का एनालिसिस जहां तक हम करते हैं वो पेडिग्री एनालिसिस इसलिए करते हैं कि हमको एक तो हम ट्रेस करते हैं क्या, फैमिली हिस्ट्री को, कि फैमिली में किस तरीके की हिस्ट्री थी। हम ये बात करते हैं कि क्या कोई फैमिली में कोई डिसीज थी, यदि थी तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकें। हम देखते हैं कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या थे, वो डिसीज कैसे आगे बढ़ेगी और वो ट्रेट और वो डिसीज जो आगे की तरफ इनहेरिटेड हो रही है उसको हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते। जहां तक पेडिग्री एनालिसिस की बात है तो पेडिग्री 2 तरीके की होती है, 2 तरीके की पेडिग्री पढ़ी जाती है। एक तो ऑटोसोमल पेडिग्री और एक होती है सेक्स लिंक्ड पेडिग्री। इसका क्या मतलब है, देखिए हमारे बॉडी में 2 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोमल क्रोमोसोम। यदि किसी ऑटोसोमल क्रोमोसोम के जेनेटिक सीक्वेंसेस में चेंज आता है और जिसके कारण वो डिसीज जो है तो क्या नाम से नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर होती है, तब उस तरीके के एनालिसिस को हम क्या कहेंगे, ऑटोसोमल पेडिग्री। और यदि सेक्स के लिंक या यूं कहिए कि एक्स और वाई क्रोमोसोम के थ्रू वो डिसीज नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है तब वो कहलाती है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस या सेक्स लिंक पेडिग्री। अब इस ऑटोसोमल में भी आपको देखना होगा, यहां पे भी 2 सिचुएशन होती है, या तो डोमिनेंट होगी ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव। व्हाट डज इट मीन्स? ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब यह है ऑटोसोमल क्रोमोसोम में है लेकिन वो डिसीज तभी अपने आप को शो कर पाएगी जब दोनों के दोनों जीन कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे। और ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब यह है कि ये तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी जब उन दोनों के दोनों जीन क्या होंगे, रिसेसिव। मतलब यदि हेटेरोजाइगस कंडीशन हुई यानी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तब ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी।
या यहाँ पे भी डोमिनेंट के केस में एक भी यदि डोमिनेंट हो गया तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ऑटोसोमल में। हम जब पेडिग्री पढ़ेंगे तब शायद अच्छे से आपकी बात समझ में आएगी। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन की यदि मैं बात करूं तो यहां पर भी दो कंडीशन मिलती है। कौन कौन सी? डोमिनेंट और रिसेसिव। तो सेक्स लिंक में भी एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। तो आप पेडिग्री को मिलाकर 4 तरीके से पढ़ते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक रिसेसिव। ये 4 तरीके में हमें पेडिग्री एनालिसिस पढ़ना है। हम पहले पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे, कैसे एक पेडिग्री, हम एक एग्जांपल लेंगे पेडिग्री का और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे पेडिग्रीज में ये अपना कॉन्सेप्ट चलता है। या तो हम ये करेंगे कि सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर हम आएंगे पेडिग्री, ताकि आपको उन डिसीजेस के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे सके कि आखिर सेक्स लिंक में ऐसा क्यों हो रहा था, या सिकल सेल एनीमिया में ऐसा क्यों हो रहा था, या हीमोफीलिया क्यों जो है तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रही थी, कैसे बचा जा सकता है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।